नमो लोये सौहरिहन्तानं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौवागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोनि मङ्गलं कुञ्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં કળશ 209 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. આજે સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારનો 18મો કળશ સળંગ કળશ 210 એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરીએ છીએ. સમયસારમાં કળશ 208, 209 અને 210 એ 3 કળશ એક સાથે કહેવામાં આવ્યા. તો 209માં કળશ પછીથી આ 210મો કળશ કહે છે. તેમાં એમ કહે છે કે હવે આગળની ગાથાઓની સૂચના રૂપ કાવ્ય કહે છે. એટલે કે હવે પછી જે મુકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથાઓ આવવાની છે એની સૂચના રૂપે આ કળશ કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે ગાથા 346, 349, 350, 351, 352 અને 353 એ ગાથાઓની સૂચના રૂપે આ કળશ 210મો કહેવામાં આવ્યો છે. તો 210મા કળશના શ્લોકાર્થમાં કહે છે કે કેવળ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી જ કર્તા અને કર્મ ભિન્ન ગણવામાં આવે છે. માત્ર વ્યવહારિક દ્રષ્ટિથી જ કર્તા અને કર્મ ભિન્ન ગણવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી જો વસ્તુને વિચારવામાં આવે તો કર્તા અને કર્મ સદા એક જ ગણવામાં આવે છે. કર્તા અને કર્મ એક જ છે, એક દ્રવ્યને વિશે જ હોય છે. ભાવાર્થમાં કહે છે જયચંદજી છાબડા કે કેવળ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ ભિન્ન દ્રવ્યોમાં કર્તા કર્મ પણ ગણવામાં આવે છે. નિશ્ચયથી તો એક જ દ્રવ્યમાં કર્તા કર્મપણું ઘટે છે એટલે હોય છે. એક જ દ્રવ્યમાં કર્તા કર્મપણું નિશ્ચયથી હોય, પણ વ્યવહારથી ભિન્ન દ્રવ્ય વચ્ચે જે કહેવામાં આવ્યું છે તો એની અહીંયા વધારે સ્પષ્ટતા દ્રષ્ટાંત દ્વારા કરે છે. એટલે હવે પછીની ગાથામાં દ્રષ્ટાંત દ્વારા એ વાતને સમજાવે છે. કળશ અમૃતની અંદર પંડિત રાજમલજી ખંડાનવાઈ સહિત અર્થમાં કહે છે કે અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મરૂપ પૂદ્ગળ પિંડનો કરતા જીવ છે કે નથી. કેમ કે એ તો પૂદ્ગળ છે, તો એનો કરતા જીવ છે કે નથી એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે છે. તો ઉત્તર આમ છે કે કહેવા માટે તો છે, વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારતા કરતા નથી. અને તે અહીંયા કહે છે કે જૂઠી એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ કરતા તથા કરાયેલું કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન છે. કરતા અને કરાયેલું કાર્ય જુદા જુદા છે. ક્યારે? તો કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો જીવ જ્ઞાનાવરણ આદિ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા એવું કહેવા માટે સત્ય છે. કારણ કે યુક્તિ એમ છે કે રાગાદિ અશુદ્ધ પરિણામોને જીવ કરે છે. રાગાદિ અશુદ્ધ પરિણામો હોતા જ્ઞાનાવરણ આદિ રૂપે ઉદ્ગળ દ્રવ્ય પરિણમે છે. તેથી કહેવા માટે એમ છે કે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ જીવે કર્યું, એમ કહેવા માટે છે. આ વ્યવહારથી વાત છે. પણ કહે છે અહીંયા કે સ્વરૂપ વિચારતા એવું કહેવું જુઠ્ઠું છે. સ્વરૂપનો વિચાર કરતા એમ ન કહી શકાય, એ કહેવું જુઠ્ઠું ઠરે. કારણ કે સાચી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે, શું જોવામાં આવે કે સ્વદ્રવ્ય પરિણામ પરદ્રવ્ય પરિણામ રૂપ વસ્તુનું સ્વરૂપ તો સર્વકાળે કરતા અર્થાંત પરિણમે છે. જે દ્રવ્ય અને કર્મ અર્થાંત દ્રવ્યનો પરિણામ એક છે. પરિણામ અને
એ પરિણામ અને દ્રવ્ય તો એ એક છે. કહે છે કે પરિણામ પરદ્રવ્ય પરિણામ રૂપ વસ્તુનું સ્વરૂપ તો સર્વકાળે કર્તા અર્થાત પરિણમે છે જે દ્રવ્ય કર્તા અને કર્મ અર્થાત દ્રવ્યનો પરિણામ એક છે. અર્થાત કોઈ જીવ અથવા પૂતગલ દ્રવ્ય પોતાના પરિણામો સાથે વ્યાપક રૂપ પરિણમે છે, તેથી કર્તા છે અને તે જ કર્મ છે, કેમ કે પરિણામ તે દ્રવ્ય સાથે વ્યાપક રૂપ છે એમ વિચારતા ઘટે છે, અનુભવમાં આવે છે. અન્ય દ્રવ્યનું અન્ય દ્રવ્ય કરતા અન્ય દ્રવ્યનો પરિણામ અન્ય દ્રવ્યનું કર્મ એવું તો અનુભવમાં આવતું નથી, એવું તો અનુભવમાં ઘટતું નથી, કારણ કે બે દ્રવ્યોને વ્યાપકપણું નથી. તો આ 210મા કળશની અંદર વાત કરી. તો એની ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, એના પાના નંબર 301, પ્રવચન નંબર 234. દસો દસ છે ને? વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ કેવલમ કર્તુ કર્મ ચ વિભિન્નમ ઈષ્યતે. નિશ્ચયેન યદિ વસ્તુ चिंतते कर्तु कर्म च सदा एकम ईशंति. हाँ, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि ज्ञानावरण आदि कर्म पुद्गल पिंड का करता जीव है कि नहीं? जो कर्म बनते हैं ना, ये कर्म का परिणाम का करता जीव है कि नहीं? कर्म एक परिणाम है, पुद्गल परिणाम. कर्म एक परमाणु जड़ की परिणति पर्याय, तो वो कर्म परमाणु का परिणाम ज्ञानावरणी आदि उसको आत्मा करता है कि नहीं करता है? ऐसा प्रश्न करे. उत्तर इस प्रकार है, कहने के तो है, केवा मात्र से. वस्तु स्वरूप विचारने पर करता नहीं. वस्तुनी स्थितिनी मर्यादा विचारते कर्म का परिणाम का जीव करता नहीं. यहाँ राग द्वेष बने ही प्रमाण में कर्म की अवस्था होती है, तो वो निमित्त से कहने में आया ऐसा कि ज्ञानावरणी कर्म आदि का करता आत्मा, व्यवहार झूठी दृष्टि से कहने में आया. हाँ है झूठू निमित्त है न बनता है इतनी ज्ञान कराने को. यहाँ राग द्वेष करते हैं जीव, तो खरेखर तो राग द्वेष का परिणाम उसका कर्म है અને આત્મા અજ્ઞાની उसका करता है. એટલું નિમિત્ત પામ્યા कर्मनी परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं. कर्म ज्ञानावरण आदि है, अपनी योग्यता से इस समय में पर्याय होने के कारण अपने कारण से ही परिणमन करते हैं. पर निमित्त है ऐसे कहने में व्यवहार से झूठा व्यवहार से कहने में आया. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया. जैसे दृष्टांत स्थूल नहीं, थूल दृष्टांत, वो वेलन होता है ना, वेलन से रोटी होती है ना, तो वेलन का परिणाम भिन्न है, रोटी का परिणाम भिन्न है. कौन झूठी व्यवहार दृष्टि से कहने में आता है कि वेलन कहते हैं,
वेलन से रोटी होती है, ये झूठा व्यवहार से कहने में आता है। हाँ, समझ में आया? यहाँ तो दृष्टांत दिया है, मूल पाठ में नो श्लोक है। शिल्पी कारीगर जो है ना, कारीगर सोनी, लोहार, सुतार, वनकर, वनकर समझे नहीं? वो कपड़ा बनते हो, क्या कहते हैं? जुला, वनकर, सोनी जो ना, सोनी दागिना करते हैं, जेवर का परिणाम करते हैं, एम व्यवहार से वो निमित्त है, तो कहने में आया है झूठी दृष्टि से। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सोनी जेवर बनते बनाते हैं, ऐसा निमित्त से लक्ष्य कराने को, ज्ञान कराने को, वह झूठी व्यवहार दृष्टि से सोनी दागिना करते हैं, जो वणकर कपड़ा बुनते हैं, ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने को, निमित्त पर चीज है, परिणाम पर से होता है, अपना परिणाम अपने से होता है। ऐसे निश्चय से विचार करने पर तो पर से परिणाम हुआ, ये झूठी दृष्टि से कहने में आया। समझ में आया? क्या है? उसको मजदूरी देना कि नहीं सोने को? दिए कौन सेठ? ये पैसा है नहीं, पैसा का परिणाम है ना, ऐसे जाना, ये परिणाम का कर्ता ही पैसा का परमाणु है। तुम्हें देते है ऐसा कहना ही तो झूठी दृष्टि से है। फिर सेठ બહુ વેપાર કરવો ને મોટો કરોડો નો, આ બધા દે મજૂરી દે ને એમ કે વીડિયો વાળે ને કામ કોણ કરે બાપુ? ભગવાન બહુ ઝીણી વાત બાપુ। हाँ, तुम्हारे लादी लादी है ना तुम्हारे? क्या कहवाई? थाना 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 में क्या दूतिया थाना में बड़ी लादी ना व्यापार है। फोड़ भाई दिख रहा है, फोड़ भाई બે ભાઈ આવ્યા છે, કરોડોપતિ છે, ધૂળના પતિ। हाँ हाँ हाँ, પણ ऐसे क्या कहते हैं? શાકભાજી ના રોટલા તો शाकभाजी न रोटा उससे मिलते नहीं। वो भी परमाणु जिस पास से आने वाला है, खाने वाले का नाम परमाणु में है, ऐसा तो है ना? उसका अर्थ जे परमाणु उसके पास आने वाला है आएगा, ये इसकी इच्छा है तो आएगा, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ, सूक्ष्म बात बहु भाई। सम्यक दर्शन तो इसी सूक्ष्म आए तो हजी अज्ञानपना की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अज्ञानपणे पण शिल्पी अपने पाठ ऐसा है तो कर लेते हैं, पाठ में ऐसा है ना, शिल्पी करते हैं ऐसा शब्द है, पाठ मूल पाठ। तो ये लोग रतन झंझनी कहते, जो करते तो है तन्मय नहीं होता, पाठ ऐसा है। तो करते हैं तो व्यवहार नहीं, झूठी दृष्टि से कहने में आया है। पाठ ऐसा मूल पाठ है। शिल्पी शिल्पी करते हैं पर तन्मय नहीं होते, ऐसा पाठ है मूल श्लोक कुंदाचार्य। શું થાય પ્રભુ? બહુ માર્ગ ફરી ગયો। હજી સમ્યક દર્શન તો ક્યાંય રહી ગયા, તો પાઠ તો અજ્ઞાની
कर्म का परिणाम करते हैं। आत्मा बांधे ऐसा भोगवे, ऐसा कहने में आता है कि नहीं? ये झूठी दृष्टि से कहने में आता है। परदैव का परिणाम आत्मा कैसे करे? समझ में आया? ये वणकर कपड़ा को वणते हैं, वणते कहते हैं, ये कैसे बने? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की ते समय में जन्म क्षण परिणाम उत्पत्ति का काल है। त्या परिणाम उत्पन्न होता है। वो दूसरा पूर्व की पर्याय भी कैसे करे, पर तो कैसे करे? तत्वनु वस्तु स्वरूप ऐसा है। ऐसी स्थिति व्यवहार से भी श्रद्धा में न आवे। व्यवहार श्रद्धा, निश्चित श्रद्धा तो सम्यक दर्शन में, ये पर की श्रद्धा का यहाँ ख्याल ही नहीं है। तो पहली श्रद्धा में आप परिणाम का कर्ता नहीं, एक पर्याय की परिणाम द्रव्य का शिल्पी हथौड़ा लिया, हथौड़ा कहते हैं, तो हथौड़ा लिया पाठ है, हथौड़ा ग्रहण करते हैं पर तन्मय नहीं होता। ऐसा पाठ है, मूल पाठ श्लोक, उसका श्लोक है। कारीगर ये उपकरण है, ग्रहण करते हैं पर तन्मय नहीं होता, उसका अर्थ ग्रहण करते ही नहीं। ये तो निमित्त से कथन है। जवाब पढ़िए। या कौन ले भाई? इस अंगुली का परिणाम से ऊपर ये शिष्यनुति हुई, एम कहने में तो निमित्त का झूठी व्यवहार से कथन है। बाकी उसका परिणाम का कर्ता वो द्रव्य है, અને अंगुली का परिणाम का कर्ता परमाणु है। जीवे के परिणाम राग। અહીં તો પહેલી અજ્ઞાની વાત લેવી છે ને, સમૂહ છે। जीव अज्ञानी राग का कर्ता होता है। ज्ञानी तो राग का कर्ता भी नहीं। ये विकल्प आता है, वो समय अपना स्वभाव की दृष्टि है, तो स्व का ज्ञान करने में पर्याय में स्वपर जानने का सामर्थ्य है, पर को जानते हैं, इस कहने में आया। राग जो आया वो भी कर्ता आत्मा है। ये तो अज्ञान भाव से सिद्ध करना है पहले तो। समझ में आया? क्योंकि उसका परिणाम है, परिणामी द्रव्य का परिणाम है। आई तो त्याग लगे लेते हैं कि द्रव्य प्रणमते हैं, उसका ही द्रव्य प्रणमते हैं। परिणाम है ना, पर्याय नहीं, ये बताते हैं। શું થાય ભાઈ, બધું છે એમ છે। ये सोनी हथौड़ा ग्रहण करते हैं ना, हथौड़ा बड़ी करते हैं, ऐसा झूठा व्यवहार से कहने में आता है। ये ग्रहण कर सकते ही नहीं, हथौड़ा उपार सकते ही नहीं। ऐसे होता है तो परिणाम का कर्ता ये अंगुली नहीं ना, सोनिया का आत्मा में परिणाम नहीं। तेते क्षण में तेते परमाणु की ते पर्याय अपने से होती है, तो कर्ता थी परमाणु और परिणाम उसका कर्म, कर्म नाम कार्य। समझ में आया? यहाँ शिल्पी ले आई थी, सब लेना, शिल्पी कारीगर ऐसा पाठ, मूल पाठ में सोनी हो, लोहार हो, सुतार हो, घड़ते हैं लकड़ा सुतार, तो एम के घड़ते हैं थोड़ा से, थोड़ा मुंह है, ये कहना में व्यवहार है। बाकी तो
सुतार अपना परिणाम राग उसको करते हैं। हाँ हाँ, और राग का फल भोगते हैं। निश्चय माया थी। ये श्लोक है, शिल्पी मत पीछे श्लोक है कि शिल्पी अपना राग को करे અને शिल्पी अपना राग को दुख को भोगवे, दुख भोगवे। પણ પરકો કરે ને પરકા ફળ ભોગવે, જ્ઞાનાવરણી का ઉદય बंद करे અને ज्ञानावरणी का फल आत्मा भोगवे, ये तो व्यवहार का झूठी दृष्टि का कथन है। समझ में आया? दया पालने की परकी पर्याय करे आत्मा, ये तो निमित्त से झूठा व्यवहार से बोलने में आया है। फक्त दया पालने का भाव है, ये उसका परिणाम है, तो अज्ञानी उसका कर्ता नहीं, ये परिणाम उसका कर्म है। समझ में आया? ये बातों से बापू बहुत जुड़ो भाई। हाँ हाँ, अंतरना समय समय ना परिणाम भिन्न भिन्न परिणाम होता है। यहाँ ये कहते हैं, कहने को तो है, वस्तु स्वरूप विचारने पर करता नहीं, ऐसा कहते हैं। व्यवहारिक दशा ये केवलम, ये तो व्यवहार कहने में केवल व्यवहार से खत्म है। झूठा व्यवहार दृष्टि से ही कर्तु कर्ता, कर्म किया कार्य, कर्ता भिन्न અને कार्य भिन्न, ये झूठी व्यवहार से कहने में आता है। समझ में आया? आत्मा रोटी खाते हैं एम कहना, ये झूठा व्यवहार से कहने में आता है। बाकी रोटी की पर्याय अपने से होती है, ये खाने का परिणाम वाला से रोटी की टुकड़ा होता है, ऐसा है नहीं। हाँ, तो धीराना काम છે બાપુ। हाँ, तो જેને आत्मा का हित करना हो, एनी बात है। पहला तो ज्ञान से सिद्ध करते हैं, है ना? कर्ता ने कर्म व्यवहार से किया कार्य, ऐसा कहने में आता है झूठा व्यवहार से। पण विभिन्नम ईष्यते, જોયું? પણ भिन्न भिन्न है। ये सोनी हथौड़ी से गढ़ते हैं एम कहना, ही तो व्यवहार से, झूठी व्यवहार से, बाकी भिन्न भिन्न है। हथौड़ी का परिणाम और चीज जो होती है गढ़तर में, इसका परिणाम दो ही भिन्न है, और सोनी का परिणाम वो भी भिन्न है। तो सोनी का परिणाम से ત્યાં थोड़ी उपड़ी ने ग्रहण किया, ये परिणाम सोनी का परिणाम उसका करता, ये तो व्यवहार से नीचे से है नहीं। विभिन्नम ईष्यते, सच दृष्टि से विभिन्नम ईष्यते, झूठी दृष्टि से कहने में आया। समझ में आया? बहु मारे बापू सम्यक दर्शन बहुत सूक्ष्म चीज प्रभु। यहाँ तो जी व्यवहार से पर परिणाम का करता, व्यवहार से किया, ये भी है नहीं। कितना सिद्ध करना है? समझ में आया? 6 प्रकार ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं ना, 6 प्रकार है। पंडित जी तत्निनव प्रदोष अत्यंत सबोल, 6 बोल का परिणाम हुआ तो ज्ञानावरणी कर्म बंधा, ये व्यवहार झूठी दृष्टि से कहने में आया है। निश्चय में इच्छा बोल का परिणाम का कर्ता अज्ञानी जीव है न, उसका ही कर्म कार्य है। 6 प्रकार आवरण जो बनते हैं, ये 6 भाव का कार्य
अज्ञानी का कार्य है ना, अज्ञानी जो उसका करता है। कर्ता कर्म विभिन्न मनुष्य पर से भिन्न जानना चाहिए, एम कहते हैं। समझ में आया? आई बात है भाई। हाँ, तो सच आवे तो सचनी जी वस्तु स्थिति है, ये तो प्रसिद्ध होती है। विभिन्न स्थिति जीव ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का कर्ता ऐसे कहने के लिए सच है, केवल मात्र है। कारण के युक्ति ऐसी क्यों कहने में आता है, इतना लेते हैं कि राग आदि अशुद्ध परिणामों को जीव करता है। राग द्वेष विषय वासना आदि का परिणाम अज्ञानी अपना मानकर करते हैं, ये बराबर है। बराबर का अर्थ ये परिणाम का कर्ता ज्ञानी, ये बराबर है। समझ में आया? ये व्यवहार झूठा नहीं है, अज्ञानी परिणाम नहीं। अज्ञानी का ये व्यवहार ज्ञानी की अपेक्षा झूठा, पर उसकी अपेक्षा झूठा नहीं। उसकी अपेक्षा है अज्ञानी का परिणाम कर्म कर्ता कर्म उसका अपने में है, ये बात ये अपेक्षा करना है। और ज्ञानी ने अपेक्षा भिन्न, ये चीज भिन्न है। यहाँ तो कर्ता ज्ञानी को अपना राग का कर्ता, जैसे दया दान व्रत भक्ति का परिणाम जैसा करे, ये उसका कर्ता न उसका कर्म ही। ये वक्ते कर्म बंधन हो, उसका आत्मा कर्ता न कर्म, ऐसा परनिशा संबंध नहीं। उनसे प्रभु सूत्र है, सच तो सच રહેશે, કોઈનું માનવું ઊંધું માની કે અહીંથી સચ ફરી નહીં જાય। અમે કરી દઈએ આ બધાના। कारण के युक्ति ऐसी है कि रागादि अशुद्ध परिणाम, देखो ये पुण्य ने पाप ना भाव अशुद्ध परिणाम है। ये जीव करता है, जीवना परिणाम है, ये कोई जड़ना परिणाम नहीं। एक बाजू जहाँ स्वभाव की दृष्टि चले, ત્યાં के विकार का कर्ता कर्म है, कर्म व्यापक ने विकार परिणाम व्याप्य, ये दूसरी दृष्टि। ये तो स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं क्या करूं? राग करने की मेरे में कोई शक्ति नहीं, गुण नहीं, स्वभाव नहीं, तो ये राग का कर्ता मैं नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसे अपने को जानते हैं। समझ में आया? पर यहाँ ये बात सिद्ध नहीं करना। क्या है सिद्ध करने वक्त ऐसा कहे कि राग पुद्गल है, पुद्गल करता है, पुद्गल स्वामी है। ये शुद्ध चैतन्य वस्तु भगवान पूर्णानंद का नाद जिसकी दृष्टि में आया, पूर्ण स्वभाव शुद्ध पवित्र नो पिंड प्रभु, ये ज्યાં दृष्टि में आया ત્યાં विकारी परिणाम का कर्ता ये आत्मा कैसे हो? समझ में आया? જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં સમજ મૂકી। અહીંયા એમ કે તમે કરતા એ જ છે, तो પછી જ્ઞાની भी करता है क्या? ऐसे सिद्ध न हो। समझ में आया? व्यवहार दोपहर को आइए व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प का भी करता धर्मी नहीं, करावने वाला नहीं, अनुमोदने वाला नहीं। ये राग होता है, पर वो ज्ञानी का देह में तो आत्मा है।
जाग तो जीव विनायक भाव पड़ा है प्रभु। हाँ, બેનની ભાષા એ ને એવું જાગતો જીવ ઉભો છે ને ભદ્રામૃતમાં विनायक भाव ध्रुव है ने। हाँ हाँ हाँ, ऐसी दृष्टि जहाँ हुई जरूर प्राप्त हो आत्मा को। चैतन्य परिणाम से प्राप्त न हो तीन काल में बने नहीं। समझ में आया? राग से प्राप्त हो ये तीन काल में बने नहीं। हाँ हाँ हाँ, બધા કારીગર લીધા ત્યાં તો એ તો આ નામો લખનારી कारीगर કહેવાય ને નામ। कलम से लिखते हैं, कलम करता અને અક્ષર उसका परिणाम ऐसे પણ नहीं અને કલમનો કરનારો જે પરિણામ રાગ અને राग का परिणाम करता और एक कलम चलती है उसका कार्य ऐसा है नहीं। कलम समझते? समझ में आया? उतार लुहार कुंभार लो, कुंभारी कारीगर है। कुंभार घड़ा को करता है एम कहना ही झूठी व्यवहार दृष्टि से है। कुंभार अपना परिणाम का करता है ज्ञानी। हाँ हाँ हाँ, घट का बनाने का भाव, ये भाव का करता ज्ञानी है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञानी कुंभार हो संकित होता ही नहीं कुंभार है। तो ये घट का परिणाम क्या करता तो नहीं, पर राग आता है उसका परिणाम क्या करता है ज्ञान धर्मी तो नहीं। आ तो वस्तुनी स्थितिनी मर्यादा ऐसी है। आ कोई करी है भगवान एम से, भगवान ने तो जैसी है ऐसी जानी ऐसी कही ऐसा है बस। ये कहा ना, इसे क्यों कहने में आता है? इन कहते कि रागादि ईश्वर परिणामों जीव करता है, रागादि ईश्वर परिणामों को होते समय कारण है व्यवहार कहने में। इनके क्या किया कि ज्ञानावरणी कर्म जीव करते हैं, ऐसा व्यवहार झूठी दृष्टि से कहने का हेतु क्या, कारण क्या? के राग आदि अशुद्ध परिणाम के होते समय जो ये समय ज्ञानावरणी पुद्गल प्रणमता, ये समय प्रणमय से पुद्गल प्रणमय से अपने कारण से। पर समय एक हुआ ने, यहाँ राग किया त्या कम ज्ञानावरण बन जा, मुंह नहीं बंधा विकेरी। तो इस एक समय हम साथ में है। होते समय ज्ञानावरण आदि दर्शनावरणी वेदनी मोहनी आयुष बदल लेना। पुद्गल द्रव्य प्रणमता है, इस कारण कहने के लिए ऐसा है। कहने के लिए क्यों है, कहने के लिए क्यों है व्यवहार से उसी सिद्धांत दिया कि जब राग आदि परिणाम पुण्य पाप दया दान का परिणाम होता है, वही समय कर्म रूपे परिणाम है पुद्गल। तो वो एक समय में देखकर उसने किया ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। समझ में आया? कहना कहने के लिए ऐसा है, ज्ञानावरणी कर्म जीव ने किया। कहने के लिए क्यों कि रागादि का समय से परमाणु बनते हैं,
समय तो एक ही है, समय एक है। यहाँ राग क्या मोदी बंधाया, यहाँ परिणाम ऐसा हुआ ना, आयुष्य बंद आयुष्य भविष्य का। तो इतना तेज समय ऐसा दिखकर उसने किया ऐसा झूठी व्यवहार से कहने में आता है। ये कहने में हेतु क्या किया इतना कि एक समय है ना, दो का समय तो एक ही है। जे समय यानी ज्ञानावरणी बंधा ऐसा भाव किया, भाव का करता होकर अज्ञानी, वही समय ज्ञानावरणी बनते। भले ही परमाणु अपनी पर्याय के योग काल से बनते हैं, अपना स्वकाल से क्या, पर आ समय में एक गिनने के कारण उसने कहा ऐसा निमित्त झूठा व्यवहार से कहने वाला था। जो तो हमारा मार्ग प्रभु का परमाज्ञम क्या कहते हैं, समझ में आया? परमाज्ञम व्यवहार किसको कहते हैं, नीचे किसको कहते हैं, परमार्थ नीचे किसको कहते हैं, अशुद्ध नीचे किसको कहते हैं? शुद्ध परिणाम का कर्ता कर्म यही उपचार से है, इतना गया है उसमें। कर्ता ने कर्म एवं बे भाग पड़ गया ने, तो ये शुद्ध परिणाम का कर्ता आत्मा ही भी उपचार से है। चला गया है व्याख्यान में। क्या से क्यों से करूं आ बाजू से क्या आ बाजू से अपन या खबर पण पाना के याद दर्श बापा है कितना 52 हिंदी ये 50 पान है हिंदी। वही परिणाम द्रव्य का किया हुआ है, ये उपचार मात्र से है। जैसे उपचार मात्र से अपने परिणाम का करता है, वही परिणाम द्रव्य का किया हुआ है, वैसे अंदर का करता अंदर उपचार मात्र से भी नहीं है। 50 में पान है हिंदी, 6ठी 7वीं लिटी है, बीच में 6ठी 7वीं लिटी पंक्ति, तो उसमें मारा माता यहाँ है गुजराती। हाँ जीव है इस जैसे उपचार मात्र से द्रव्य अपने परिणाम का करता है, यही करता उपचार से, वही परिणाम द्रव्य का किया हुआ है, वन द्रव्य का करता अंदर उपचार मात्र से भी नहीं, अपना परिणाम का करता आत्मा ऐसा कहना ये उपचार है, पर पर का करता तो उपचार से भी नहीं। આવી વાત છે ભાઈ, શું થાય? होते समय कर्मजीव ने किया, ऐसे स्वरूप का विचार करने पर ऐसा कहना झूठा है। कारण के यदि निश्चयन चिंतते, यदि निश्चयन चिंतते, जो निश्चय नाम सच्ची, निश्चय नो अर्थ कर्यो पाछो साची व्यवहार दृष्टि, बोली झूठी व्यवहार दृष्टि थी। निश्चय नाम सच्ची व्यवहार दृष्टि से देखा जाए, क्या देखा जाए? स्वद्रव्य परिणाम परद्रव्य परिणाम रूप वस्तु का स्वरूप तो सदा एक कर्तु कर्म एकम दृश्यति, જોયો? ये पण नीचे न सत्य व्यवहार दृष्टि भेद हुआ नहीं इतना। परिणाम जीव क्रिया, परिणाम जीव का कार्य, ये भी व्यवहार दृष्टि से, सच्ची व्यवहार दृष्टि से और झूठी व्यवहार दृष्टि से। क्या किया कि आत्मा
अपना परिणाम का कर्ता અને परिणाम आत्मा का कर्म, चाहे तो शुद्ध हो के अशुद्ध हो, अशुद्ध हो अज्ञानी न शुद्ध हो ज्ञानी, पण ये पण उपचार मात्र છે. ઉપચાર નામ આરોપ વ્યવહાર નહીં છે એ બી, પણ એ કેવી વ્યવહાર નહીં, સચ્ચી વ્યવહાર. નીચે નથી ક્યાં આવું વાત છે. निश्चय न सच्ची व्यवहार दृष्टि से देखा जाए, क्या देखा जाए, वस्तु स्वद्रव्य परिणाम परद्रव्य परिणाम वस्तु का स्वरूप तो सदा ये कर्तु कर्म एक ही स्थिति, सद्रव्य परिणाम है, परद्रव्य परिणाम अपना अपना कर्ता कर्म है, पરની સાથે કઈ સંબંધ है सदा एव सर्व एक ત્રણેય કા, ત્રણ લોકમાં સર્વ કા. પરિણમતા है सो द्रव्य, नीचे એટલે સચ્ચી વ્યવહાર દૃષ્ટિ. परिणमता है वो द्रव्य, देखो परिणमता है द्रव्य, द्रव्य परिणत है, पर्याय ये अपेक्षा है. परिणमता है जो द्रव्य, द्रव्य का परिणाम एक ही स्थिति एक है. कोई जीव का जीव पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम के साथ व्यापक रूप परिणमता है. क्या कही, कैसा क्यों कहा सच्ची व्यवहार दृष्टि से कि परिणाम कर्म व्याप्य और आत्मा व्यापक अथवा पुद्गल आदि दरेक में नहीं आत्मा जो आत्मा व्यापक है और परिणाम व्याप है, ऐसा व्यापक का संबंध अपने में न अपने में सच्ची व्यवहार दृष्टि से कहने में आता है. समझ में आया? नीचे से तो वस्तु वस्तु है, परिणाम क्या करता कि नहीं सच्ची व्यवहार दृष्टि से. क्या परिणाम क्या करता कि नहीं झूठी व्यवहार दृष्टि से. આવી વાત હવે ક્યાં છે? मूल चीजनी मर्यादा ये क्या है ये बताते हैं. ये कोई एक गलती हो मानी हो, ये प्रमाण कई वस्तु की मर्यादा होती है. द्रव्य का सर्वई का परिणमता है वो द्रव्य, जो सिद्धांता जो परिणमते हैं ये द्रव्य करता, અને પરિણમન हुआ वो उसका कर्म. बस त्रिणय का सिद्धांत, परमाणु में, आत्मा में, छह द्रव्य में जे पलटते हैं, परिणमते हैं, बदलते हैं, ऐसा द्रव्य करता અને बदला परिणाम हुआ उसका कर्म, बस कार्य. आ सिवाय कोई परनी साथे कोई संबंध ही नहीं. समझ में आया? अपने में भी इतना भेद पाड़ना ही सच्ची व्यवहार दृष्टि है. नीचे से तो परिणाम परिणाम का करता है, द्रव्य का करता क्या नहीं के सच्ची व्यवहार दृष्टि है. ये बात उनसे बापू बहुत सूक्ष्म भाई, तत्वनी दृष्टि हजी तो पर से भिन्न परना परिणाम का ये समय होते हैं. हाथ देखो ऐसा चलते हैं तो यहाँ ये समय उसका विकल्प है. ये समय ऐसा हुआ तो झूठी दृष्टि से कहने में आया कि उसने अंगुली हलाई. सच्ची व्यवहार दृष्टि से देखो तो अंगुली का परिणाम का परिणमने वाला परमाणु और परिणाम उसका कर्म. ये लिखने की प्रक्रिया उसका कार्य है, ये है नहीं. समझ में आया?
ઓહો મોટો ઉછલ પાછલ થાય છે. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 210 કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવે જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું.